السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو مہیش نامی ایک بندے کی ویڈیو دکھاؤں گا جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ جتنے بھی مذہب کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، لیکن ہندو ہو گئے ہیں، عیسائی ہو گئے ہیں، مسلمان، یہ لوگ جو ہے مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اتنی لڑائی اور اتنے قتل تو جو ہے ورلڈ وار 2 میں بھی نہیں ہوئے۔ تو آئیے دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بنا وجہ فساد مت پھیلا، شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو، یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ۔ سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے، سارے ورلڈ میں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا، ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا۔ تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی۔ مہیش بھائی، مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں، اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا، کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ۔ آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے، چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے، مسلمان کی بھی، عیسائی کی بھی، ہندو کی بھی۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے، فساد پھیلانا غلط ہے، معصوم کا قتل کرنا غلط ہے، چاہے ہندو یا مسلمان ہو۔ لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں، اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا۔ اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی۔ اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا، اس ٹیررزم اور مسلم منوپلی، یہ ٹیررزم مسلم منوپلی جو ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا۔ اب بھگوت گیتا پڑھو، وید پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو، یہ نہیں سکھاتا۔ لیکن میرے نزدیک یہ منوپلی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی۔ یہ پولیٹیشن لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر، اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے، چاہے گجرات میں ہو، چاہے اودھیا میں ہو، چاہے بامبے میں ہو، اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشین۔ وہ غریب کو اکساتے ہیں، وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں، اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اور اس دیش میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے۔ اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے، ابھی آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے، کانفرنس میں آتے، آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں۔ کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا، کچھ آپ کو تکلیف دیں گا تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے، لیکن اوورآل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے۔ جہاں تک کہ میں جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے۔
जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। जी दोस्तों, ऐसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी, और आप लोगों ने इस बहेश नामी शख्स के जो सवाल था वो भी आप लोगों ने सुना है। दोस्तों, इसका कहना है कि जितने भी मज़हब के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, अगर वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, जितने भी मज़हब और धर्म रखते हैं, इनके नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं, इतने जो है कत्ल तो जंग में भी नहीं हुए, किसी जंग में भी नहीं हुए, लेकिन जितने ये लोग मज़हब के नाम पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक इसको बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि मज़हब के नाम पर जितने भी कत्ल हो रहे हैं ये एक सिलसिला जो स्टार्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लाम में जो है अगर कोई किसी मासूम का कत्ल करता है तो वो भी हराम है। अगर जितने भी, अगर वो हिंदू है, अगर वो ईसाई है, अगर वो मुसलमान है, हम लोग इस्लाम है, अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि जितने भी अगर आप लोगों ने किसी एक मासूम का कत्ल कर दिया है तो वो आपके 100 इंसानियत कत्ल करने के बराबर है। किसी एक को भी अगर आपने ऐसे वैसे नुकसान पहुंचा दिया है तो वो आप लोगों ने जुल्म कर दिया है। दोस्तों, हर किसी को जो है अपने मज़हब में वो इजाज़त है, अगर वो ईसाई है, अगर वो हिंदू है, अगर वो ईसाई है, जितने भी लोग हैं उनको अपने धर्म में अपनी इबादत करने की इजाज़त है। दोस्तों, तो जितने भी मतलब कि जितने भी हिंदू लोग हैं, अगर वो मुसलमानों से लड़ते हैं, अगर मुसलमान जो है हिंदू से लड़ते हैं दोस्तों, तो कोई भी मुसलमान जो है वो हर किसी को बेगुनाह नहीं मारता है। ये एक मेरी बात याद रखें दोस्तों। आजकल जो मीडिया ने मुसलमानों का नाम जो है बदनाम कर दिया है कि मुसलमान दहशतगर्द है, या मुसलमान जो है लोगों को ऐसे मारते हैं, या मुसलमान जितने भी लोग देखे दोस्तों, अगर वो फॉरेन कंट्री के मीडिया है, अगर BBC न्यूज़ है, अगर वो कोई भी न्यूज़ है जो कि मुसलमानों को दहशतगर्द करा देते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है दहशतगर्द हो, लोगों को बेगुनाह कत्ल करते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे इस्लाम में यही लिखा है, अगर कोई भी बंदा किसी मुसलमान को बेगुनाह कत्ल करेगा तो वो ऐसा है कि इसने पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। दोस्तों, ये हर एक मज़हब में यही तालीमात दी जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है इस पर अमल करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आजकल मीडिया ने ये बात जो है वो फैला दी गई है दोस्तों के मुसलमान जो है वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, या ये वो लोग हैं जो कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को जो है वो नीचा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है इस्लाम की हिफाजत करता है, मुसलमानों की हिफाजत करता है वो। और जितने भी मुसलमान हैं दोस्तों, हमारे इस्लाम में है, हमारे कुरान मजीद में है, अगर कोई भी मुसलमान अगर किसी एक इंसान का बेगुनाह कत्ल करता है तो वो 100 इंसानियत कत्ल करने के बराबर है। दोस्तों, अगर आप लोग देखें दुनिया में कोई भी मुसलमान अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारेगा तो वो हमारे कुरान मजीद में हराम है दोस्तों। फिर जो है
कुछ ऐसे लोग उठते हैं और फिर इस्लाम पे जो है इल्ज़ामात लगाते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, वे है वो है। यही लोग हैं जो कि दोस्तों दहशतगर्दी फैलाते हैं, यही लोग हैं जो कि लोगों को कत्ल करते हैं, यही लोग हैं जो लोगों को बेघर करते हैं। आप लोग इसकी हिस्ट्री देख लें दोस्तों कि ये कैसे मुसलमानों को, इस्लाम को कैसे बदनाम कर रहे हैं। इस पर दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि हमारे इस्लाम में अगर किसी को बेगुनाह कत्ल कर दिया तो उसको, वो भी इस्लाम में हमारे पास हराम है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी मुसलमान जो है अगर उसके साथ ज़्यादती भी हुई हो, अगर वो किसी मुसलमान को मारेगा तो वो एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन अगर कोई भी मुसलमान अगर किसी एक ऐसे इंसान का कत्ल करेगा तो वो हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे कुरान मजीद ने हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो हमारे इस्लाम में हराम है। बल्कि ये कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों कि मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों का, हमारा इस्लाम बदनाम कर रहे हैं। आप लोग दुनिया में देखिए दोस्तों कि मीडिया आजकल बहुत दूर पहुंच गई है और मुसलमानों को जो है हर एक तरीके से वो खींच रहे हैं कि हम मुसलमानों को कैसे जो है वो नीचे दिखाए, या हम मुसलमानों को कैसे जो है वो कमज़ोर करें, दीन इस्लाम को कैसे कमज़ोर करें। लेकिन अल्लाह ताला हमारी दीन की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे। हम बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों अगर हम दीन को पहचानेंगे, अगर हम जदोजहद करेंगे दीन को फैलाने में, दीन को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में दोस्तों, उसकी तालीमात देने में, तो हम जो है दोस्तों मीडिया के ज़रिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बेहतरीन जो है जदोजहद कर रहे हैं दीन के लिहाज से हर किसी को। दोस्तों अगर आप लोग इस पंडाल में देखें, ये भारत में दोस्तों ये डॉक्टर जाकिर नाइक का जो है ये एक प्रोग्राम है दोस्तों, ये शुरू है, लाखों में जो है यहाँ पे लोग मौजूद है, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक उनका जवाब देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि उनके इलाके में बैठकर वो लोग जो है इकट्ठे होकर और फिर उनको जो है उनके धर्म के उनके मज़हब में उनको उनकी किताबों से सवाल उठाकर उनको किताबों में जो है उनके वही जवाब देते हैं। तो वो लोग फिर हैरान रह जाते हैं। उस तरह बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि फिर बाद में वो सही रास्ते पर आ जाते हैं, जो कि जवाब सुनकर उस पर इतना असर वो डाल लेता है कि वो मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये किसकी बदौलत है? ये इस्लाम की तालीमात की बदौलत है कि हमारी इस्लाम जो है कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी जद्दोजहद कर रहा है कि इस्लाम की तालीमात एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक हिंदुस्तान में एक पंडाल में जो है हमारा जो है एक भाई जिसका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है वो खड़ा है और फिर उनको तालीमात देता है, उनके सवालात के जवाब देता है और फिर इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखे हैं तो दोस्तों हर एक प्रोग्राम में आप लोग कितने देखते हैं कि कितने लोग मुसलमान होते हैं। हर एक को जो है उनका जवाब मिलता है, वही जवाब मिलता है जिसको दिल जो है उनको सुकून मिल जाता है। वो जवाब को उनके सवालात के जितने भी सवालात होते हैं उनका जवाब मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।